Madam, rewards and recognition. To understand this rewards and recognition, you need to, it will be better if you go through one theory. एक theory है जिसको थोड़ा सा आप समझिए क्योंकि ये बहुत रिसर्च theory है. This is a thoroughly researched theory in the field of management. This is a theory that is taught generally in organizational behavior. Okay, this is the theory of motivation, and this is the father of all theories. All the other theories have originated or diversified from this theory. इसीलिए थोड़ा सा एक बार ये theory को आप थोड़ा सा समझिए कि motivation की मैस्लो की नीड हायरार्की theory है. रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन को समझने के पहले इस theory को थोड़ा सा समझिए. Okay? If you want to draw it, you can draw. This is Maslow's need hierarchy theory. ये theory I think आपको आगे भी पढ़ना होगा, इसीलिए पढ़ लो इस चीज को. अगर वहाँ omit हुआ तो maybe forthcoming classes or forthcoming semesters you need to study this. This is a theory of motivation. कि humans कैसे motivated होते हैं. ठीक है, motivation एक बहुत important topic है जब हम organization को समझते हैं. ठीक है, when we study organization, when we study behavior of people in an office, which is an organization, both individually and in group, ये theory managers को लोगों के motivation को समझने में बहुत helpful होती है. ठीक है, आप इतने सारे लोग organization में काम करते हैं, लेकिन organization को ये समझना चाहिए कि apart from being an employee of the organization, first you are a human being. Okay, you have some needs. We are driven by some factors which are extrinsic and intrinsic, जो बाहर से originate करती है और जो अंदर से originate करती है, हमारे अंदर से. Motivation is an intrinsic factor. आप ये देखेंगे कि जब एग्जाम पास आता है आपको कैसे मोटिवेशन हो जाता है ना जल्दी जल्दी पढ़ने का. कभी कोई प्रेशर होता है क्लास में टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, घर में मम्मी बोले ना बोले, बट यू कैन स्टडी. होता है ना मोटिवेशन. इसी तरीके से वर्क प्लेस पे देयर आर सम नीड्स जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए. वी आर मोटिवेटेड. A motivated employee of an organization is willing to put in more than a non-motivated or a demotivated employee of the organization. If you are happy with the workplace, if your needs are being fulfilled, of course you will be looking forward to going every day to the organization and giving your best. एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपके पर्सनल नीड्स को प्रोफेशनल नीड्स के साथ अलाइन कर पाता है ताकि आपका मोटिवेशन बढ़े काम करने का. अगर हमारा कोई बेनिफिट नहीं है तो ह्यूमन नीड है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर. अगर आपका कोई पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, उस काम को करने में आपका कोई मोटिवेशन नहीं होगा. नहीं होगा ना. हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो we'll not be happy to work or we'll not be happy to contribute our efforts in that. तो मैस्लो की
नीड हायरार्की थ्योरी ये कहती है, वर्क प्लेस के लिए है, आप एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि इतने लोगों को, he was a psychologist, he was a researcher, and he said कि वर्क प्लेस पे जो हमारी नीड्स होती है वो लेयर बाय लेयर या हायरार्की बाय हायरार्की चलती है। एक वर्क्स इन हायरार्की। जब नीचे की नीड पूरी हो जाती है हमारी, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट लेवल। यहाँ पूरी हो जाती है, वी मूव ऑन टू नेक्स्ट लेवल। यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर व्हिच इज देयर इन एन इंडिविजुअल। इसमें से इन तीनों को कहते हैं लोअर ऑर्डर नीड, और इन दोनों को कहते हैं हायर ऑर्डर नीड। This theory is the most relevant theory not just in organization but even in your personal life. आप देखेंगे वर्क प्लेस पे जाके then you will recall this theory and you will state कि हाँ ये जो भी theories पढ़ाई जाती है that is after thorough research ना, human behavior को बहुत research करके तब ये theories बनाई जाती है। तो ये आपको अपने ऊपर applicable होता हुआ दिखेगा। कर्ट लेविन एक मैनेजमेंट के स्कॉलर हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उनका एक स्टेटमेंट है, there is nothing more practical than a good theory। हम कहते हैं ना ये किताबी बातें, राइट? बट कर्ट लेविन ने ये कहा था कि there is nothing more practical than a good theory। एक अच्छी थ्योरी से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी चीज का नहीं दिखता है। ठीक है? You draw the diagram, you write down, and then I'll explain what this theory is। रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन समझने के लिए थोड़ा सा ये थ्योरी मैम एज ए एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव आपने लिखा है। आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। एज एन एम्प्लॉय भी यू विल फील that once your one need is completed you move on to the other need, we don't stay there, and self actualization is the highest order need which is the highest thing that you need in life। सब लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैम हाँ बोलो मैम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन that basically means, speak louder ma'am, it means I'll explain it to you। नीचे से पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ाना। ओके मैम, अभी हम लोग फॉर्मेट सिर्फ कॉपी पे नोट डाउन करने। ओके मैम। ज्यादातर मोटिवेशन थ्योरीज 1940 से लेकर 1970 तक के बीच की गई है, क्योंकि बाकी सारी थ्योरीज इसकी एक्सटेंशन है। मेरी कंसर्व की टू फैक्टर थ्योरी है, मैकलेलन की थ्री नीड्स थ्योरी है, रिएक्शन थ्योरी है, तो सब इसी के बाद बनाए गए। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन। आज भी ये थ्योरी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, ट्रू है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम तो ये थ्योरी से क्वेश्चन आ नहीं है, बिल्कुल आता है। मोटिवेशन से क्वेश्चन आया तो ये थ्योरी से क्वेश्चन आया। Written online students? Yes ma'am, done. Everyone? Yes ma'am. Okay। देखो, अब्राहम मैस्लो की ये नीड हायरार्की थ्योरी है। नीड एंड हायरार्की, फोकस ऑन दीस टू वर्ड्स। पहला है नीड, यानी इट इज ड्रिवन बाय द मोटिवेशन। हमारा जो मोटिवेशन ये काम करने का, दैट इज ड्रिवन बाय आवर नीड्स। हम क्यों काम करते हैं? एक टाइम के बाद हमें पैसे की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है तो हमको काम तो करना ही है, राइट? एंड हायरार्की इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ ये थ्योरी आपको दिखेगी कि ये पिरामिड के शेप में बनी हुई है, क्योंकि नीचे वाली नीड सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद ऊपर की नीड कम होती है, इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, और इस नीड तक सब पहुंच भी नहीं पाते हैं अपनी लाइफ में। वर्क प्लेस पे सबसे और अब्राहम मैस्लो ने ये कहा कि जब तक हमारी एक नीड पूरी नहीं हो जाती है हम दूसरे नीड पर शिफ्ट नहीं करते, राइट? फिजियोलॉजिकल नीड,
फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब होता है जो बहुत बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, फूड, एयर टू ब्रीथ, राइट, एयर टू ब्रीथ, वाटर, घर के ऊपर छत, ठीक है, to live somewhere, the physical needs, these basic needs are put in physiological need. अब तुम सोचो कि जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, क्या वो ये सोचेगा कि हमको वर्क प्लेस में सेफ्टी मिले? उसको तो बस नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए पहले। जिसके पास ये नहीं होगा, क्या वो सोचेगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ घूमे फिरे हम? नहीं सोचेगा ना। So physiological needs is the very basic need that you want, ठीक है? पहले इसको फुलफिल, बहुत जो एकदम बेसिक लेवल का नीड होता है, रोटी, कपड़ा, मकान जिसको कहते हैं हम, वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड। I was teaching him, I think I was taking kids में बहुत बेसिक चीजें जो हैं वो आती है, ठीक है? जब ये नीड पूरी हो जाती है वर्कर की, तब वो मूव करता है सेफ्टी पे। सेफ्टी को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जिस टाइम पे ये थ्योरी की गई थी, उस टाइम पे रिसर्च वर्क थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से था। उस वक्त लेबर लॉज बहुत नहीं, लेबर लॉज से ड्रिवन नहीं था इंडस्ट्री का वर्क। आए दिन एक्सीडेंट होता रहता था कि the workers were subjected to accidents, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी की उंगली कट गई, and the employers they just threw them out of the organization. He was of no use either to the organization or to their homes. कट गया तो फिर वो तो घर के लिए भी यूजलेस हो गया, उसके पीछे उसकी बीवी बच्चा क्या खाएं, राइट? सेफ्टी नीड का यही मतलब था कि उस वक्त इतना ज्यादा एक्सीडेंट्स होता था, इतना ज्यादा एक्सीडेंट्स होता था कि वर्कर्स को लगा कि ठीक है अब काम मिल गया, सब कुछ है, पैसा थोड़ा बहुत आ रहा है, अब थोड़ा जो एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं, दैट एनवायरनमेंट शुड बी सेफर, दैट एनवायरनमेंट शुड बी सेफर, लेस एक्सीडेंट प्रोन। सेफ्टी में आप वो भी मान सकते हैं कि द एनवायरनमेंट शुड बी लेस अब्यूजिव। हमारे जो एम्प्लॉयज है वो पहले बहुत इल ट्रीट होता था ना वर्कर्स के साथ, आज भी होता है, लेकिन अब थोड़े लेबर लॉज स्ट्रिक्ट हो गए हैं। इंडिया में काफी लेबर लॉज है वर्कर्स के लिए, और ये रातों रात नहीं बने हैं। आपको जितना दिखेगा 1947 के बाद लॉ दिखेगा, इंडस्ट्रियल ऑर्डर स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट Yes, ma'am. 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1940। All laws enacted after independence. Yes, ma'am. Ma'am, basically all laws enacted after independence. आफ्टर, लगभग आफ्टर इंडिपेंडेंस। सिर्फ उसमें से एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है और दो तीन लॉ है जो 1923 का है, लेकिन क्योंकि उसमें पैसा एम्प्लॉयर को देना होता था एक्सीडेंट के बाद, तो एम्प्लॉयर क्या होता था, एम्प्लॉयर माइटियर होता था, वो ज्यादा पावरफुल है। वो वर्कर को बोलता था कि ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, आप जाओ जाके केस लड़ो, प्रूव करो यहाँ पे कोर्ट। जिसको खाने को पैसा नहीं है वो कोर्ट केस लड़ेगा नहीं होता था, और वो मिल करके एक चार्ज कर देता था कि वर्कर ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है। उल्टा जिसके पास पैसा है दैट इज माइटियर, है ना? तो सेफ्टी का मतलब वो होता है कि सेफ एनवायरनमेंट, इतना पैसा यहाँ मिलता है लेकिन थोड़ा पैसा हमें इसलिए मिले कि हम अपने बच्चों की एजुकेशन को थोड़ा बहुत पढ़ा सके, कल को अगर कोई मेडिकल नीड हो जाए हमारी तो उसके लिए थोड़ा पैसा सेव कर सके, दैट वाज सेफ्टी। लेकिन सेफ्टी को तो फिजियोलॉजिकल के पहले सोच सकते हो। एक बार आपको पैसा मिल गया, पढ़ लिए, सॉरी काम कर लिए, उसके बाद ही सोचेंगे ना कि अब नेक्स्ट क्या, राइट? अभी दिमाग में है क्या कि कार खरीदना है? नहीं होगा। अभी ये होगा कि पहले अच्छी नौकरी करनी है, जब नौकरी में सेटल हो जाएंगे देन यू स्टार्ट अबाउट लग्जरी, और अच्छा करेंगे तो और अच्छी चीजों की नीड बढ़ेगी। अभी से है क्या कि बंगलो खरीदना है? टुमारो मे बी वन ऑफ यू और मेनी ऑफ यू विल बी अ मिलियनेयर, लेकिन आज तो आपकी रिक्वायरमेंट है जॉब है ना? नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सोशल ऑर्डर नीड्स। सी, जब आप ऑफिस में काम करते हैं, स्पेशली ये वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि ये मैनेजर को समझना बहुत जरूरी है, सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, बट वंस यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और आपको एक बहुत स्ट्रिंजेंट रूटीन में रखा जाता है कि आपको आना है और जाना है,
You're a student, you have the liberty to miss one class and attend the other and compensate the attendance in all the classes. Yes, you have that liberty now. But when you will be working, you will not have this liberty. You have to come at the time which is assigned to you, and you will not leave before that time. Plus the work pressure, plus the all the datum lines that you need to finish your work before that, right? क्या होता है कि sometimes we feel psychological fatigue. तो हमारा social need होता है. We want to go back to people who love us. एक क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं, पर हमारी फ्रेंडशिप कुछ लोगों के साथ ज्यादा होती है. क्यों? Because they have accepted you the way they are, and you have accepted them the way they are, right? तो हमारा एक harmonious relation होता है. This is what happens with your family. It's not important that you have an agreement with everything that your sister says, that your brother says. No, but then you know they are harmless to you. Yes, they love you and you love them back. Come what may, they will be always there to protect you in case you are low, feeling low, or there's some problem with you, right? This is why we need to go back to family. सबसे ज्यादा फैमिली की जरूरत कब होती है? जब हम थोड़ा सा लो फील करते हैं. We don't feel good. हम टूट जाते हैं, हमारा कुछ प्रॉब्लम. So काम करते करते there's a kind of psychological fatigue, and we want the social need to be fulfilled. The workers wanted to be with workers. आप जब ऑफिस में काम करेंगे तो आपकी वो भी फैमिली बन जाएगी. There's a family. और ये तो वर्कर्स पे रिसर्च हुआ था. उनकी तो फैमिली वही थी, वही लोग सपोर्ट करते थे जिनको जो था. So they wanted to be with their friends. You want to be with your family. When you start working now, after 5-6 years, when you are into your job completely, racha kasa ho jata hai, then what happens? You want to take leave, and you want to go for 10 days or something to your family, come back rejuvenated. Social need होती है. अब आपको छुट्टी ना मिले, आप कभी फैमिली से मिल ही ना पाए, राइट? तो इस नीड को भी वर्क प्लेस पे समझा जाना चाहिए, और ये बहुत बड़ी नीड होती है. आप एक दिन पार्टी करके आ जाओ, आपको बहुत अच्छा फील होगा. You'll be charged up for the rest of the week. And it's not just about party, it's about meeting your loved ones, right? These were all social order, lower order needs. Now we move on to self-esteem and self-actualization. This self-esteem is where rewards and recognition comes into being. मैस्लो ने ये बोला कि एक बार जब हम अपनी लोअर ऑर्डर नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं वर्क प्लेस पे, जो फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सोशल, वी मूव ऑन टू सेल्फ एस्टीम नीड. इन तीनों को पूरा करने में काफी टाइम लगता है वर्क प्लेस पे. आप जब अपने वर्क प्लेस पे सीनियर हो जाते हैं, तो फिर पैसा सिर्फ एक मोटिवेटर नहीं होता है आपको मोटिवेट करने के. The money ceases to be the motivator, the only motivator. ऐसा इम्पोर्टेंट होता है, but that is not the only motivator. आपको कोई बोले कि आप इस कंपनी को ज्वाइन कीजिए, हर साल पैसा बढ़ेगा, काफी पैसा देंगे, लेकिन ग्रोथ कुछ नहीं होगी. जिस पोस्ट पे ज्वाइन किए उसी पे रिटायर कीजिए, आप ज्वाइन करेंगे? पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. There is no growth opportunity. आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे. तो मनी कहाँ सिर्फ मोटिवेटर है. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हैं तो शुरू में तो यू जॉइन इट because you are needy. After that you will see कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ नहीं है. Have you heard people complaining this? इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ग्रोथ नहीं है, वही काम कराते रहो, आगे का कोई नहीं. तो क्या होता है एक टाइम के बाद, for your self respect, self esteem मतलब क्या होता है? It means self respect. For your self respect to be valued, you want growth opportunity, you want achievements, you will look forward to achieving things, you will like rewards and recognition. Okay, you will want rewards and recognition. This is what starts motivating you after a certain period of time in your workplace. आपको अच्छा लगेगा कि अगर आपने काम किया और पूरी टीम मीटिंग में आपको पिन पॉइंट करके
आपको पिन पॉइंट करके ये बोला जाए कि दिस पर्सन हैज डन वेरी गुड इन हिज टीम वर्क, हिज वर्क वाज वेरी गुड, he completed his task before the deadline. या फिर आपने किसी कंपनी को में 10 साल काम किया, इट्स अ गुड कंपनी, यू हैव स्टेड देयर फॉर 10 years and you have worked very good, और कंपनी आपके स्टे को, आपके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जस्ट टू रिकॉग्नाइज योर स्टे एंड योर एफर्ट्स दैट यू हैव गिवन टू द कंपनी, इट गिव्स यू अ मोमेंटम, एक सिल्वर का मोमेंटम या कुछ ऐसा, you like it, right? You'll feel recognized, you'll feel rewarded, that my efforts are being rewarded. इसीलिए रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन किसी कंपनी के कॉम्पेंसेशन पैकेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपने कॉम्पेंसेशन पैकेज में लिखवाए थे ना कि रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन आर इंपॉर्टेंट, सैलरी स्ट्रक्चर का 4 कंपोनेंट था, लास्ट वाला रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन था, राइट? अब आपको समझ में आया नीड हायरार्की थ्योरी में क्यों पढ़ाए कि सेल्फ एस्टीम क्या होता है, कि ये मोटिवेशन फैक्टर होता है, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन क्यों डाला जाता है कॉम्पेंसेशन पैकेज में। इसमें रिवॉर्ड्स मॉनेटरी होता है और रिकॉग्निशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, नॉन मॉनेटरी होता है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को खंगालता है और हम सबको अच्छा लगता है अगर हमारे किए हुए काम के लिए हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, हमें रिवॉर्ड किया जाए। If I am a lecturer, I will be happy if people give review कि मैम अच्छा पढ़ाती है। On the contrary, अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई बोलेगा कि मैम अच्छा नहीं पढ़ाती है ना? I'll feel good if the management calls me and says that okay, we are satisfied with your teaching, you're a good teacher. अच्छा लगेगा। ये नहीं भी किया जा सकता है, आप omit भी कर सकते हैं। They have hired me, I'll be delivering lectures and everything, you'll be studying, ठीक है। पर ये अच्छा नहीं होगा कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक मोटिवेशन के तौर पे बोला जाए, अच्छा लगेगा ना? लगेगा। तो ये इसीलिए क्यों, इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे लगता है कि माय वर्क इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, मुझे पता है कि दीदी कि मैं सिंसियर हूं, लेकिन स्टिल यही होता है वर्क प्लेस पे कि आपकी सिंसियरिटी को, आपके काम को, आपके एफर्ट्स को, आपके स्टे को अगर रिवॉर्ड किया जाता है या रिकॉग्नाइज किया जाता है, यू फील गुड अबाउट इट। ओके, अब एक पूरा थ्योरी बता दिए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सुन लो, उसके बाद विल कम बैक टू रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि ये सारी नीड्स को जब हम फुलफिल कर देते हैं, सेल्फ एस्टीम में ये भी आता है, जैसे एग्जांपल सेल्फ एस्टीम का समझो कि आप अपने ग्रुप के साथ काम किए, 200 लोगों को इन्फोसिस ने हायर किया एक साथ, 10 साल आपने काम किया, आप प्रोजेक्ट में काफी आगे बढ़ गए, तो है तो सब आपके साथ वाले, पर आईटी वालों को देखा है सब अपना छोटा छोटा क्यूबिकल लेकर के लैपटॉप लेके बैठा रहता है, और आईटी का ऑफिस का भी देखना अपना अपना लैपटॉप लेके सब, ये अच्छा नहीं होगा। अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा अगर आपको एक छोटा सा कैबिन दे दिया जाए, आपको यू फील गुड ना, यू फील डिफरेंशिएटेड फ्रॉम देम। टीम मीटिंग में आपको कॉल करके बोला जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, नहीं टीम मीटिंग में तो भी आपको पर्सनली बुला करके बोला जाए, मैनेजर अगर आपको बुला के बोलता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा लगेगा ना? दिस इज रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। अब देखो ये सारी चीजें फुलफिल जब हो जाती है, द पर्सन मूव्स ऑन टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइज मतलब क्या होता है? रियलाइज करना, एक्चुअल पावर को रियलाइज करना। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे वी डोंट नो द टैलेंट वी हैव अंटिल वी आर फोर्स्ड टू, और वी आर गिवन विद नो चॉइस। हमें लगता है हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, पर जब प्रेशर आता है वी हैंडल इट, राइट? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आपकी सारी नीड लाइफ में फुलफिल हो गई, आप इस लेवल तक पहुंच गए, इस लेवल तक पहुंच गए कि अब यू वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, यू वांट टू गिव पीपल समथिंग बिकॉज़ यू नो दैट यू आर केपेबल ऑफ। जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इन लोगों ने क्या किया कि बिल्कुल सोसाइटी के लिए, अपार्थीड के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट की डिफरेंशिएशन के लिए साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला 20 साल तक जेल में रहे, राइट? इट्स a history of struggle। महात्मा गांधी पूरी जिंदगी अपनी आजादी की लड़ाई में निकाल दी, किए ना? ऐसे ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं।
जो एक्चुअलाइज, जिनको लगता है कि मैं दूसरों की लाइफ में चेंज ला सकता हूँ, या फिर बहुत बिल्कुल स्पिरिचुअल जो लोग हो गए, they have just everything cut off from the social life. The top level of human need जो होता है, जिसमें आप अपने आप को बहुत ग्रो कर लेते हैं, that is self actualization, that you have actualized your power, your strength, your need to give back to society. Okay, next we move on to rewards and recognition. समझ में आया theory? Yes, ma'am. So well elaborated. Rewards and recognition both are types of motivation. रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन ये दोनों ही एक टाइप ऑफ मोटिवेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कॉम्पेंसेशन पैकेज में इसलिए डाला जाता है, इसलिए डाली जाती है ताकि वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सके. Time and on, it is good practice for the organization to keep you motivated, to recognize its employees so that they are thoroughly motivated and they feel engaged with the organization. Engaged मतलब रिजिड अपने काम में फोकस है. ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में बोलिए, ये अलग चीज है. एंगेज्ड मतलब नॉट बिजी, उनका डिस्ट्रैक्शन अदर थिंग्स में ना जाए, अपने पे फोकस्ड रहे. फोकस्ड रहे. और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचता है, वहाँ की पॉलिसी, वहाँ के लीडरशिप के बारे में, वहाँ के मोटिवेशनल क्वालिटीज के बारे में, वहाँ के नियम कानून, वहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर, ओवरऑल वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचता है और कितना इमोशनली अटैच्ड है. समझ में आया? कितना इमोशनली अटैच्ड है. आज के डेट में एचआर का एक बहुत बड़ा काम एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी है, ये ध्यान रखना. ठीक है, हमको पता था एंगेजमेंट का ये बोलोगे, इसीलिए हम अलग से आइडेंटिफाई किए. Employee engagement means overall, in a comprehensive manner, what does the employee think of the organization and how emotionally or sentimentally attached he or she is with the organization. Okay. Coming back to rewards and recognition, both are factors for motivation. They are put in your compensation package. It is a good practice by the organization to include rewards and recognition. Rewards और recognition को we use it interchangeably, but there are certain differences. जैसे reward is monetary. Write down. अच्छा, okay, don't write it. I'll make you write. Understand? Recognition is monetary. इसको ऐसे समझो. आपने इंटरनल एग्जाम दिया अपना, आप आए, कोई टीचर आपको ये बोले कि yes, your writing is very good, your handwriting is very good, and they gave you 2 marks for it. ये reward हो जाएगा. And they made you stand in front of class and say that your handwriting is very good. Okay. So reward means जिसका value estimate किया जा सकता है. You can, it's a tangible transaction. आप इसकी value estimate कर सकते हैं. I can estimate the value of 2 marks. I can estimate the value of a gift. एक holiday package का हम एक value estimate कर सकते हैं. Goa के 3 nights 2 days का. I can estimate the value of a Bombay Dine bedsheet package, right? समझ में आ रहा है? I can estimate the value of a silver shield. Can you estimate the value of praising somebody? It's an intangible transaction, right? Rewards के बारे में जनरली क्या होता है कि आपको पता होता है, क्योंकि आपसे पहले भी लोगों को मिला होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में. अच्छा काम, ये प्रैक्टिस सिर्फ आपके लिए थोड़ी होगी. If it is in practice of that organization, it will be for others also. So you already know that if somebody is doing their good in the organization, they will be commensurated with it at the end of the day with a reward. So reward is more of an expected thing. Expected, mostly.
ये थोड़ी ना एचआर प्रैक्टिस में लाती है कि इस टाइम पे अभी 2 महीना हो गया है तो तुमको आपकी तारीफ करनी है, अभी 3 महीना हो गया है तो मुझे आपकी स्पॉन्टेनियस। आप अभी कोई बहुत टफ सा काम हैंडल कर लिए, शायद आपको रिवॉर्ड ना मिले पर रिकग्निशन मिल सकता है कि ये तो प्रोजेक्ट बहुत टफ था एंड यू आर गोइंग रियली गुड इन दिस। मिडवे हो सकता है जब वर्क इन प्रोग्रेस है, क्या बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको सडनली यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस एंड देन द मैनेजर विल कॉल यू एंड अप्रिशिएट यू। तो आपको तो अनएक्सपेक्टेड था ना, ऐसा थोड़ी कि बोल के चलो आ जाओ आज आपको तारीफ की जाएगी, नो राइट। तो ये स्पॉन्टेनियस होता है मोस्टली। दिस इज टैंजिबल, तो भी हम बोलेंगे मोस्टली क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों चीजें आपको सीमलेस मिलेगी, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन। this is definitely an intangible transaction, an intangible, you cannot touch it, you can just feel it। recognition, टीम में मीटिंग हो रही है, 20 लोगों की मीटिंग है and then manager praises you, this is spontaneous, this is intangible, everything। reward over and above the salary होता है, right, this is over and above the salary। ऐसा नहीं है कि इधर से रिवॉर्ड दिया उधर से सैलरी में कट कर लिया, नहीं, ठीक है, then that is not reward, reward is above your salary। so you understood what is reward and recognition। recognition is something which comes for free, obviously ये free है, किसी की तारीफ करना is free, but it makes a huge impact on somebody's motivation and it is advisable for the organizations to use it much often। ज्यादा यूज करने को एडवाइस किया जाता है क्योंकि इससे सचमुच में एम्प्लॉय के साइकोलॉजिकल मोटिवेशन पे बहुत फर्क पड़ता है। ओके, एंड यू राइट डाउन रिवॉर्ड, both are parts of larger employee retention both are parts of larger employee retention strategy implementing rewards and recognition can make or break implementing employees reward and recognition can make or break employees well-being, make or break employees well-being, productivity and satisfaction in their roles, productivity and satisfaction in their roles। They should be appropriately designed to fit into the organization they should be appropriately designed to fit into the organization and serve the purpose of employee engagement and retention। And serve the purpose of employee engagement and retention। एम्प्लॉय को रिटेन करके रखने में बहुत बड़ा रोल होता है रिवॉर्ड और रिकग्निशन का। Then you give the heading reward, write few points about And serve the purpose of employee engagement and retention।
Next you write down reward. बुलेट पॉइंट्स दे करके लिखो, ठीक है। मॉनेटरी इन नेचर, ब्रैकेट में डालो गिफ्ट्स, गिफ्ट्स, प्रॉफिट शेयरिंग, कॉमा बोनस, second bullet point, in addition to, मतलब rewards and reward, this is in addition to, write down reward is in addition to, reward is an addition to and not replacement of, employees salary and benefits. Employees salary and benefits. Done writing, online students? Next you write down financial rewards should be used sparingly, कम यूज किया जाना चाहिए. Financial rewards should be used sparingly before making you write this. You answer me one question. अगर देखिए अभी के टाइम पे क्या है कि HR का वर्किंग प्रैक्टिस थोड़ा चेंज हो गया है over the in the last 10 years. The big companies, they prefer employees working in teams rather than individually. Yes, you're allotted a team and then you're given a work, that project. So all the team members, they contribute their efforts to completing that work. तो अगर reward which is monetary in nature दिया जाएगा किसी एक मेंबर को, तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है? Yes, you understand this? ये तो ह्यूमन नेचर है भाई, सब साथ वाले हैं, किसी एक को उठा के बोनस दे दिया 2 लाख, फिर आप समझ सकते हैं कि जलन हो सकती है, जेलसी हो सकती है, ये डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कई बार टेल मी मैम अदर एम्प्लॉयज के लिए वो डीमोटिवेटिंग होगा, बट सिमिलर रिवॉर्ड इसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर. तो एक एम्प्लॉयर को तो अपने पूरे टीम के बारे में सोचना है, क्योंकि आज आपने किसी को एक रिवॉर्ड कर दिया, but then there are other team members also, they will feel demotivated. कितना भी काम कर लो, यहाँ तो पार्शियलिटी होती है, एफर्ट्स लगाना कम कर देंगे, राइट? इसीलिए ये पॉलिसी के तहत एडवाइजेबल होता है कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को थोड़ा कम यूज किया जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि रिकॉग्निशन को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए. Financial rewards use होता है, but as a part of policy, as a part of human psychology, financial rewards थोड़ा sparingly use किया जाना चाहिए. Okay, right now, financial rewards should be used sparingly as it could demotivate other members, because people working in it, because these days people work in a team, and it must be considered within the context of team,
Okay, within the context of team, पूरी टीम के बारे में सोचना चाहिए. Next, recognition. Bullet points देके लिखो. This is praise for their accomplishments. This is praise for their accomplishments without a tangible transaction. Without a tangible transaction. But then you give bullet points so that it's easy to remember. First bullet point, right? Non-transferable. 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 Is it a characteristic or not? Say for example, you got a gift. ठीक है, एक किचन का सेट वगैरह कुछ ऐसे दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. You can give it to someone else. You can give your memento to someone else. ठीक है? But when you are recognized, only you are recognized, right? So it is not transferable. Next you write dot, bullet point, invisible. Invisible. Next, priceless. Priceless. Next, unexpected. Right oblique, unexpected oblique spontaneous. Spontaneous. Next, right, emotional. Next, it's a good balance between inexpensive and worthwhile. It is a good balance between inexpensive and worthwhile. What is that supposed to mean? Tell me. Inexpensive and worthwhile. 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 मतलब inexpensive भी है और बहुत कारगर भी है ना, बहुत अच्छा impact करता है. With this, we complete rewards and recognition, which is the fourth component of salary structure. From the next class, we will study statutory benefits. लेकिन वो वही है जैसे पनिशमेंट या पेनल्टी या फाइन या डांटा गया या ग्रुप में किसी को पनिशमेंट किया गया तो वो होता है. But for most part, incentive is monetary and it is performance based. Okay.